So welcome all of you, welcome in our daily book reading workshop. In last session we have taken the 7th layer of separation chart, and at the end we are taking compensatory cures, and at that time my internet connection was lost, so that the compensatory cures जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए उसे आज हम सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ compensatory cures and what you are knows about the compensatory cure. तो लास्ट टाइम कुछ थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया था, तो कौन बताएगा किसको समझ में आया था, कहाँ तक हमने उसे कवर किया था. कॉम्पेंसेटरी क्योर. कॉम्पेंसेटरी क्योर, कॉम्पेंसेशन, इसके मीनिंग में ही सब कुछ है. कॉम्पेंसेशन होता है क्योर का. तो कॉम्पेंसेशन दैट मीन्स कि कुछ तभी ऐसा कुछ देके उसके बदले में कुछ लेना, दैट इज द कॉम्पेंसेशन. किसी थोड़ी सी चीज पे सेटिस्फाई हो जाना, समाधान मान लेना, दैट इज द कॉम्पेंसेशन. सो इन द क्यूरिंग प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी ये कॉम्पेंसेशन होता है, और वो कॉम्पेंसेशन होता है कि मोर डेंजरस जाके लेस डेंजरस कुछ तभी आता है, दैट इज द कॉम्पेंसेशन. सो इन 7th लेयर इज वर्चुअली अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. जो 7th लेयर डिजीजेस हमने देखे, डिजीजेस ऑफ जीन्स, माइंड, सेल, वहां से पेशेंट को और डिजीज को रिटर्न लाना, रिवर्स करना, रिस्टोर करना, जो टोटली इरिवर्सिबल डिजीजेस है, स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक डिजीज है, उस लेयर से डिजीज प्रोसेस को रिटर्न लाना, क्योर इस्टेब्लिश करना, इट इज मोर डिफिकल्ट. सो ऐसे केसेस में, ऐसे डिजीज में वहां कंप्लीट क्योर ना होते हुए, डिजीज 7th लेयर से 1st लेयर पे ना आते हुए, क्योंकि 7th लेयर का डिजीज का एज ग्रुप ये ओल्ड एज ग्रुप होता है, और ओल्ड एज में 7th लेयर से 1st लेयर पे लाना, स्किन इरप्शंस लाना, इट इज मोर डिफिकल्ट. सो ऐसे केसेस में मोर डेंजरस जो लाइफ थ्रेटनिंग है, वो जाके कुछ तभी ऐसा सेटल हो जाता है जो डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, और वो डिजीज ऑन द विदाउट मेडिसिन उसे मेंटेन कर सकते हैं, लाइफ पूरी जी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेटरी. So, but cure can still takes place of certain disease at this level. Here the definition of cure has to be understood. Cure here implies restoration of near to normal functions with sensation of well-being, leading to peaceful prolonged existence in spite and despite of pathology. This can be achieved only by homeopaths prescribing on totality. Yes, so this is possible only when we prescribe on totality of symptoms. So it may be the prescription, it may be phenotypic or genotypic. Phenotypic in the cases of mutation
of cells of genes like cancers. जीनोटाइपिक, जहां म्यूटेशन नहीं हुआ है वहां आपको जीनोटाइपिक देना पड़ेगा. So a 4-year-old boy, a patient of mitral valve prolapse, slated for immediate open heart surgery, was treated with his constitutional simillimum, which was phosphorus. सर ने यहाँ सिंपल केस दी है जहां कॉम्पेंसेटरी क्योर कैसे होता है सर एक्सप्लेन कर रहे हैं. The boy who complained of breathlessness on slightest effort of walking, ascending stairs, etc., gradually within 2 weeks time showed remarkable improvement in stamina, and after a repetition of hardly 3 doses over a period of 1 year could sustain an effort of carrying 10 kg weight of up a staircase to the 6th floor of building regularly, as he was carpenter. Even as on today, after 8 years of no other medications, he is working really hard for his living without any complaints. So हार्ट कंप्लेंट थी, हार्ट डिजीज था. हार्ट डिजीज में थोड़ा सा भी एक्सर्शन, वॉकिंग, फिजिकल एक्सर्शन एग्रीवेट द सिम्टम्स, एग्रीवेट द ब्रेथलेसनेस, डिस्निया. और ऐसे केस में सर ने मेडिसिन देने के बाद उसका ब्रेथलेसनेस टोटली गया, ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन गया, weakness gaya, stamina bada, and he can now do his routine work because he was carpenter, and carpenter always does the hard work. So he can easily, without any discomfort, he can do his routine work. But his echocardiogram, dekho, but his echocardiogram, the color, Doppler and all other investigations for the heart shows he still has the same old prolapsed mitral valve. Yes. तो इन्वेस्टिगेशंस में आपको हमेशा वो दिखेगा ही mitral valve prolapse, बट वो वहां पे पैथोलॉजिकली दिखेगा, लेकिन फिजियोलॉजिकली ही इज ओके, ही बिकम नॉर्मल, क्योर. His murmur also stays for an allopathic physician he is still diseased, but for a homeopathic physician he is compensated to call himself cured, क्योंकि वहां का लाइफ थ्रेटनिंग गया. और लाइफ थ्रेटनिंग क्या था कि थोड़ा सा भी एक्सर्शन किया तो उसे ब्रेथलेसनेस होता था, डिस्निया. All these are compensatory cures. In such cures we do not see the applicability of Hering's law of cure. Yes, so this is called compensatory cure. ऐसे एक सिंपल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जहाँ मेरा एक कैंसर का पेशेंट था, नियर अबाउट 55 ओल्ड लेडी थी जो टीचर थी, जिन्हें सीए सिकम हुआ था, इलियोसिकल जंक्शन पे ग्रोथ थी, एंड दैट ग्रोथ वाज मैलिग्नेंट. आफ्टर ऑपरेशन her weight tremendously reduced. That 65-70 years 70 kg weight lady become 25 kg after surgery. Of that growth was removed and chemos was given, and इतना 70 से 25 पे आना, and
आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पेशेंट कैसे दिखता होगा। When I was visited at her home, टोटली बेड पे ऐसा लगता था कि बस ओनली बोन्स रखे हुए। तो वो पूरी केस लिया, देखा, एंड जस्ट उन्होंने 2 दिन पहले ही उनके वापस टोटल इन्वेस्टिगेशंस किए थे, उसमें उनको वो सिकम का जाके लंग्स में आ चुका था। So disease transfer from stomach to lungs and also pelvic bone. तो 2 जगह पे मेटास्टेसिस हुआ था। तो ऐसे केस में हमें तो फिनोटाइपिक ही प्रिस्क्राइब करना है, क्योंकि इंटेस्टाइन से वो भला ही गया आफ्टर सर्जरी, आफ्टर कट, बट मेटास्टेसिस हो गया, मतलब डिजीज स्टेट और बढ़ गई, जिसमें इतना मैसिव वेट लॉस हुआ। पूरे केस लेने के बाद जब मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद 15 डेज में ही इतना एक्सलेंट रिजल्ट आया, उनका वेट नियर अबाउट 5 kg गेन हो गया, एपेटाइट इंप्रूव हो गई, और जो आफ्टर सर्जरी जो वुंड वहां पे थी, जो हील नहीं हो रही थी और कंटिन्यूस उसमें से वूजिंग होता था, कभी कभी इंटेस्टाइन में से स्टूल भी बाहर आते थे, क्योंकि ओपन वुंड थी। और डायरेक्ट ब्लैडर से कैथेटर डाले हुआ था, और एक पस ड्रेन करने के लिए 2 तरफ से 2 ट्यूब थे। तो धीरे धीरे वेट बढ़ना शुरू हुआ, एपेटाइट बढ़ गई, एनर्जी आ गई, वीकनेस कम होने लग गया, और वो जो ओपन वुंड थी वो हील होना शुरू हो गई। मुझे लगा चलो जम गया। फिर आफ्टर 15 डेज वो वुंड टोटली हील हो गई, वेट और 2 kg गेन हो गया। नाउ शी वॉज 25 थी तो वो 32 हो गई। फिर धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, धीरे धीरे उसकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती गई, ट्यूब निकल गए, वो टोटली हील हो गई, पेशेंट उठना बैठना शुरू हो गया, घूमना शुरू हो गया, थोड़ा वॉकिंग करती थी, और धीरे धीरे वेट बिकम नियर अबाउट 40। तब उसने मेरे क्लिनिक को विजिट किया, और पहले का वीडियो और बाद में का वीडियो एक्सट्रीमली चेंज। कोई पहचान भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता कि ये लेडी यही है करके, इतना एक्सलेंट रिजल्ट आया। और उसका कॉन्फ्लिक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि सिंस मैरिज कंटिन्यूअस डिस्प्यूट, quarrels between husband and wife, continuously. She was teacher, husband was in a national bank, manager of national bank, और दोनों भी सेपरेट रहते थे, और कुछ दिन पहले ही वो साथ में आए थे, मतलब नियर अबाउट 20 years she was separated, और उसके कुछ 2-4 साल पहले ही वो साथ में आए, साथ में रहना शुरू किया। 3 बच्चे, और बच्चे भी फादर के पास रहते थे, इनके पास कोई नहीं रहता था। और यहाँ साथ में आने के बाद वापस वही शुरू हो गया, वापस झगड़े, बच्चों की वजह से झगड़े, बच्चे भी झगड़े करते थे, इवन कभी कभी मारते भी थे।
तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ, इतना डेजर्टेड उनका लाइफ था, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल और इलियोसिकल जंक्शन पे ही उनको कैंसर हुआ। एंड दैट इज द मोस्ट important and the perfect conflict is quarrels between husband and wife. Yes, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन होता है, इलियोसिकल जंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन फॉर हस्बैंड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर वाइफ, और उसके जंक्शन पे जो ग्रोथ हो जाती है, स्ट्रक्चर होता है, that is because of quarrels between husband and wife. इतनी अच्छी हील हो गई, कुछ 6 महीने बाद टोटली पूरा पेट स्कैन किया, सब इन्वेस्टिगेशन किए और सब इन्वेस्टिगेशन नील आए। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ होम्योपैथी। And I was prescribed her arsenic album 200, a single dose. Hardly 2 times I was repeated. But after 6 months, she was diagnosed as a diabetes. This is called compensatory. वो 7th लेयर से 5th लेयर पे आ गई और 5th लेयर का डिजीज वो गया नहीं। आफ्टर दैट आई वॉज ट्रीटेड अगेन नियर अबाउट 6 to 8 months, बट डायबिटीज में कोई चेंज नहीं। दैट शुगर वॉज कांस्टेंट, मेंटेन रहती थी, लेकिन थोड़ा कुछ खाने में आया कि वो बढ़ जाती थी। दिस इज द कॉम्पेंसेटरी क्योर। मोर डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग गया एंड साइकोटिक, दैट इज डायबिटीज आ गया। दिस इज कॉल्ड द कॉम्पेंसेटरी क्योर। यस, तो इस तरह से कॉम्पेंसेटरी क्योर होता है। नाउ टुडे वी विल सी द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? आपको क्या लगता है कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए? कौन बोलेगा? हाँ, वेट एंड वॉच। प्रिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए? प्रिस्क्रिप्शन, यस, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन विल बी SL, always will be SL. But if the parameters, general parameters not improved, फिर भी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन SL ही होना चाहिए। ओके, जनरल पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर्स, कुछ उसके कोरोलरीज इंप्रूव है और कुछ नहीं, या फिर एम्लोरेशन फॉलोड बाय एग्रेवेशन हो रहा है, देन सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। यस, अगर जनरल पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं हुए इन आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग द रेमेडी, या फिर जनरल पैरामीटर्स टोटली डिस्टर्ब हो गए, then you have to think about a reanalysis of the case. पोटेंसी बढ़ाना चाहिए? नो। पोटेंसी बढ़ा के आप डिजीज को क्योर करना है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्योर करना है? डिजीज पोटेंसी बढ़ाने से क्या होगा? डिजीज पावर और मेडिसिनल पावर। यहाँ पे डिजीज पावर उतनी है और आप मेडिसिनल पावर बढ़ाते जा रहे तो क्या हो जाएगा? डिजीज पावर दबती जाएगी एंड उसके साथ साथ
वाइटल फोर्स भी वहां पे जो डिजीज फोर्स पे एक्ट होने वाला था वो भी उसके नीचे दब जाएगा, और आफ्टर दैट पेशेंट may feel sometimes better, that is called palliation, but again it will rise suddenly. So this is not favorable. So don't increase the potency, think about reanalysis of the case. Yes. So सर क्या बोलते हैं हम देखते हैं, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस. In our daily practice, we encounter lot of dilemmas. The complaints disappear in one system only to appear in another. Comprehending or not comprehending the follow-ups properly might be a key in determining success and failure. In the following examples, one can see how there is confusion to assess patients in terms of Hering's law of cure. If it is taken in strict sense of the word and not understood properly, it is important to remember that a real sense of well-being is always an accompaniment of the disappearance of physical symptoms in the right order. This is true in SORA but not always true in psychosis and syphilis. In psychosis, the patient may feel good generally, but the disease concealed deep inside goes on increasing. Yes. So, sense of well-being. सेंस ऑफ वेलबींग कैसे देखना? तो अगर मेडिसिन देने के बाद पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले ये सुनने के पहले खुश नहीं होना. अगर पेशेंट बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा, दिस इज समथिंग डाउटफुल. हमारे मन में ये आना चाहिए, इसको अच्छा क्यों लग रहा, व्हाई. पेशेंट ने ऐसा फर्स्ट विजिट में ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट फॉलोअप में, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा. नहीं, अच्छा लग रहा मतलब समथिंग डाउटफुल. यस. तो सेंस ऑफ वेलबींग आया, कुछ पेशेंट अच्छा फील कर रहा है, तो सबसे पहले उसका अच्छी तरह से फॉलो एनालिसिस करो कि किन किन सिम्टम्स में अच्छा लग रहा है, जनरल पैरामीटर्स में अच्छा लग रहा है क्या, है ना. ओनली मेंटली फील्स बेटर एंड फिजिकली नॉट, दिस इज रॉन्ग. या फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. रियली ही फील्स बेटर और ही आपको कुछ बोस्टर कर रहा है, पोस्टिंग कर रहा है ना, कि भाई डॉक्टर, हमारे डॉक्टर को अच्छा लगने को ना, इसलिए मैंने बोल दिया अच्छा लग रहा है. दैट इज साइकोसिस. तो हमें रियल क्या है वो फाइंड आउट करना है, और कभी भी ये बात पे खुश नहीं होना चाहिए कि ही फील्स बेटर. नो. अगर ये बोलता है कि क्या डॉक्टर साहब आपने क्या मेडिसिन दी, पहले मैं अच्छा था, आपकी दवा लेने के बाद और बिगड़ गया काम, बहुत तकलीफ हो रही, तो अब हमें खुश होना है. दैट मीन्स कि एग्रेवेशन होगा, दैट इज द राइट साइन. तब आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा, ये तो अच्छा बताया आपने, है ना. तो फर्स्ट एग्रेवेशन फॉलोड बाय एम्लोरेशन. इसलिए सेंस ऑफ वेल बीइंग पे हमेशा ध्यान रखना कि पेशेंट एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, एक्चुअल क्या कह रहा है. यस. तो सेंस ऑफ वेल बीइंग कहाँ आया, माइंड में आया कि फिजिकल में आया. हमें फिजिकल जनरल्स में सेंस ऑफ वेल बीइंग चाहिए, माइंड में नहीं. हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट अगर मेंटली फील्स बेटर कर रहा है, नो, हमें फिजिकल एंड जनरल्स में इंप्रूवमेंट चाहिए फर्स्ट. यस. सो
In psychosis, the patient may feel good generally, but disease concealed deep inside goes on increasing. Based on the chart of 7 layers of suppression or disease progression, one finds it easy to answer queries which arise in a day-to-day practice whether the follow-ups is good or bad. Yes. इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा. फॉलोअप्स करके एक बुक है डॉक्टर नरेंद्र मेहता का, आप उसे पढ़ सकते हैं. बहुत अच्छा बुक है फॉलोअप्स के लिए ओनली. यस. तो सर ने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल, आर द फॉलोइंग फॉलोअप्स गुड और बैड. तो सर ने कुछ फॉलोअप्स के एग्जाम्पल दिए जहां हमें एनालाइज करना है कि गुड है कि बैड है, राइट डायरेक्शन है कि रॉन्ग डायरेक्शन है. So what direction does each one follows? A patient complaining pain in abdomen due to acidity is treated homeopathically. The pain in the abdomen disappears and tingling, numbness in hands start. It is good or bad? How did the disease progress from center to periphery or inside out? Simple, acidity disappear हो गए, then tingling in hands start. तो ये inside out है या फिर center to periphery है या फिर less important to more important है. तो मैं पूछते जाऊंगा, आप लोगों ने बताना है गुड और बैड. Yes, because the stomach less important to nerves, more important gaya hai. That is the second layer to sixth layer. It is bad. Disease has traveled from abdomen to sixth layer nervous system. Bad. Pain in abdomen disappear and ankle joint start paining. Pain in abdomen, that is the second layer to third layer, is a again, it is not inside out. It is from more to less important to more important. Second layer to third layer. Again, it is bad. Diarrhea stops and scaling and keratinocytosis of skin start. That is psoriasis. तो डायरिया के बाद अगर सोरियासिस होता है, डायरिया इट इज सेकंड लेयर एंड सोरियासिस इट इज थर्ड लेयर डर्मिस. अगेन इट इज नॉट फ्रॉम द इनसाइड आउट और सेंटर टू पेरिफेरी, इट इज फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट टू मोर इंपॉर्टेंट, सेकंड लेयर टू थर्ड लेयर. इट इज suppression. That is the bad side. Vitiligo appears on skin from inside. Diarrhea stop and vitiligo start. Vitiligo again the fifth layer disease. Diarrhea it is second layer disease. So vitiligo it is syphilitic. Diarrhea it is sori. So again miasmatically भी यहाँ पे transfer हुआ disease. Sora to syphilis and second layer to fifth layer. It is syphilis. It is bad, so it is suppression. Diarrhea stop and hair fall start. Again second layer to third layer dermis. It is bad. Diarrhea stop, eruption, itching, eruption start with fever inside out. Good or bad? Now it is good. Why? Because second layer to first layer. Second layer stomach to first layer skin. It is good sign. Diarrhea stop and abscesses start appearing on skin with fever inside out. With fever, yes. तो डायरिया स्टॉप हुआ और एब्सेस आया. गुड और बैड? Yes, someone. Good or bad? Bad. Yes. Yes, because psoriasis, psychosis, infection, body
gives entry to infection bacteria, that is bad. That means immunity not grown up. Respiratory problem like asthma disappear and dry cough start. Good or bad? Good. That is inside out, center to periphery. It is good sign. Respiratory problem like asthma disappear and sneezing start. Again it is good sign. Asthma disappear and asthmatic sneezing stops, and 8 breathlessness on exertion persist. So exertion, breathlessness on exertion, it is bad. So bad follow. Asthma stop and blood pressure increases. Again lungs to heart. That is second layer to fourth layer. It is bad sign. Asthma stop and cervical spondylosis start. Second layer to third layer. Again bad sign. Giddiness occurs. Asthma stop and giddiness. Again, giddiness, it is the 6th layer, vertigo, 6th layer, nervous system, bad sign. Second layer to 6th layer, it is bad sign. Lumbago, sacral pain and sciatica is better, and pain in chest radiating to left arm occurs. Lumbago stop हुआ and chest pain start हुआ. Good or bad? Bad. Why? Third layer to fourth layer. Very good. Then lumbago stop and blood pressure increases. Bad. Third layer to fourth layer. Lumbago or sciatica stop and blood sugar increases. Again, third layer to fifth layer, it is bad. Lumbago stop and pain in neck start. Now it is third layer problem. Bad, because below upward हुआ, that is bad. Less important to more important जा रहा है, that is bad. Lumbago गया और facial or trigeminal neuralgia occurs. Bad, मतलब third layer to sixth layer, it is bad. Sciatica stop and leukoderma occurs. Again bad. Third layer to fifth layer. Lumbago stop and lichen planus occur. It is bad. Yes. Lumbago stop, headache with dizziness occur. Again, the head nervous system is bad. Lumbago, sciatica stop and urticaria occurs. Urticaria. It is, yes, urticaria is due to secretion of histamine, and histamine, it is a mast cell. Yes. So, angioblastic origin. And it comes into which layer? It is the fourth layer organ. Yes, that is the lymph node. Hence disease has progressed. Third to fourth layer is bad. Mental symptoms better, but patient feels physically weak. That is, sense of well-being comes,
but physically patient general condition becomes dull. Good or bad? Bad prognosis. Physical weakness is not a physical particular, it is due to toxins being transported higher up through active gradient. This uses up ATP, that is energy. Hence, ATP is insufficient for daily work of cells and tissues. Hence, weakness and no desire for work or daily routines is a sure shot indication of suppression, irrespective of what mental symptoms is better. Yes. तो सेंस ऑफ वेल बीइंग हमें फर्स्ट किस में चाहिए? फिजिकल जनरल्स में, नॉट इन माइंड. यस. सो व्हाई डू सप्रेशन ऑकर्स? व्हाट इज द रीजन ऑफ सप्रेशन ऑकर्स? प्रैक्टिस ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन. सर के एक्सपीरियंस प्रैक्टिस पर से सर ने यहाँ दिया है. सप्रेशन आर नॉट अ मोनोपोली ऑफ फिजिकल प्रिस्क्राइबर्स. यस, जो सॉरी ओनली फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं या फिर मेंटल सिम्टम्स लेते हैं, वही सप्रेशंस मोस्टली उनके ही केसेस में होता है, ऐसा नहीं है. होम्योपैथ्स हु बेस देयर प्रिस्क्रिप्शन ऑन ओनली माइंड कैन इक्वली एंड फ्रीक्वेंटली सप्रेस. सिंगल डोज से भी होता है, मल्टीपल डोज से भी होता है. So today the homeopathic world has been unfortunately divided into two extremist camp. Yes, कोई क्लासिकल होम्योपैथ, कोई प्रिडिक्टिव होम्योपैथ, कोई सेंसेशन, हर किसी ने अपना अपना पाथ बना लिया है. So those who consider the physicals only and those who consider the mentals only. कोई only physicals पे प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई only mentals पे प्रिस्क्राइब, कोई physicals भी लेते हैं, mentals भी लेते हैं. Yes. So both these camps treat each other as untouchables. They conveniently forget that homeopathy is a holistic science and man as a whole includes man and mind and body. Mind cannot possibly exist without the body, nor the body without the mind. Yes. तो अगर हमें whole body को, whole constitution को treat करना है तो mind and body दोनों के हमें सिम्टम्स, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कंसिडर करके जो मेडिसिन आएगी, दैट इज द परफेक्ट सिमिलर. इट इज दिस lacuna in the approach of homeopaths which has been solely responsible for homeopaths not being able to see or appreciate the Hering's law of cure come true in each and every case, be it acute or chronic. एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, दोनों केसेस में हमें हेरिंग्स लॉ दिखता ही है. इफ यू हैव सच अ विजन ऑफ आवर नॉलेज, होम्योपैथिक नॉलेज. कल हमने एसएससी जो क्या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की जो केस मैंने बताया, उसमें भी हेरिंग्स लॉ मैंने आपको दिखाया, एक्यूट केस, बट हेरिंग्स लॉ फॉलोज. यस. सो अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन टू व्यू द लॉ ऑफ क्यूर इन एक्यूट एंड क्रॉनिक केसेस इज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड मेंटल टोटलिटी व्हिच इंक्लूड्स, यस, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, द बेसिक नेचर और माइंड of a person as is represented in each and every cell by his genetic code. This includes even the non-disease nature, that is religiousness, conscientiousness, temper, slowness, quickness, mildness, bashfulness, contentment, courageous, cowardice, yielding, resignation, affectionateness, revolting or anarchist nature. This is the non-disease characteristics, non-disease nature, non-disease symptoms of the constitution. All these and many others arise from genetic code, and these all are genetic codes inherited from parents, that is, carry a family trait and thus a tendency to be peculiar. So build, look,
peculiar speech, peculiar behavior, both of the individual as a whole and his organs and systems, and thus have a tendency to particular diseases or illnesses, which together we call as miasmatic traits. Even the texture of hair, distribution of hair or type and color of skin, nails, the length and the prominences of bones go a long way in considering the right genetic constitutional simile. तो सर का यही कहना है कि अगर आपको जीसीएस सिलेक्ट करना है तो माइंड के भी जेनेटिक ट्रेट्स लेना है जो नॉन डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स है. देन अगेन फिजिकल एंड जनरल्स में भी हमें वो सिम्टम्स, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स सिलेक्ट करना है जो नॉन डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स है. The emotions of love, hate, fear, anxieties, fright, illusion, delusions, desire and aversions, food, drinks, temperature, tolerances and intolerances to various stimuli, physical and mental, considering the mentals or physicals are the chief reasons for suppression. So only mental or physical, दोनों में से एक पे अगर आप प्रिस्क्राइब करेंगे, इट विल ऑलवेज गिव द सप्रेशन. सो आपको जेनेटिक ट्रेट्स लेके कहाँ से पिकअप करना है, तो यहाँ सर ने दिया है. किस टाइप के लेना है वो भी दिया है. यस, सो इस तरह से ये सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है. और आपको इसमें समझ में आया होगा कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कब देना चाहिए और prescription should be based on which characteristics. The base of the prescription क्या होना चाहिए. So this is the second prescription chapter, and कल हम देखेंगे साइंस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमा. तो आज हम इस चैप्टर में किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम आज के टिप्स पे जाते हैं, हैनिमैनियन टिप्स. तो मैं 2 मिनट देता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कल के केस के बारे में. अगर किसी को कोई आइडिया आई होंगी, कुछ डाउट आया होगा, कोई क्वेरी होंगी, क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ सकते हैं. यस, हेरिंग्स लॉ के लिए कोई अगर किसी की क्वेरी होंगी तो आप पूछ सकते हैं. 7 लेयर्स चार्ट के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं. सबके पास 7 लेयर्स चार्ट का लैमिनेशन करके टेबल पे रखा है क्या? हर किसी ने उसे उस चार्ट को बना के रखा है क्या? यस, तो ये 7 लेयर्स चार्ट है, ये सबके पास है क्या? सब इसे फॉलो करते हैं क्या? सब इसे हर केस पे देखते हैं क्या खोल के? या फिर आपको ये लर्न हुआ होगा कि आप कुछ भी पूछो, हम पट से बता देते किस लेयर का है, कौन से डेरिवेटिव का है, कौन से लेयर में आता है, कौन सा माइजम है. यस, तो कोई भी क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा तो आप फट से पूछिए, क्योंकि यस, बोलिए. नो, कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो नेसेसरी है हमें सब कुछ करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी ही चाहिए. पेशेंट हमारे पास आया था तो पूरे इन्वेस्टिगेशन करके ही आया था. उसका 2D इको हुआ था, ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी हुए थे, एक्सरे चेस्ट भी हुआ था, सोनोग्राफी भी हुई थी. तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शी हैज
pericardial effusion, it is psychosis, that is the collection of fluid, and CCM, congestive cardiac failure, it is syphilitic. Yes. तो जो भी मायाजम सिलेक्ट किया था वो अकॉर्डिंग टू हर कंडीशन, हर सिम्टम्स, वायलेंट सिम्टम्स, उस बेस पे एंड द पैथोलॉजी एंड द इन्वेस्टिगेशंस, उसके बेस पे मायाजम सिलेक्ट हुए। यस। अंदाज से गोली मारने में कोई मतलब नहीं है। कल हमने बताया था कि लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर इमरजेंसी केस है जहां ना पेशेंट के पास टाइम है ना हमारे पास टाइम है, जो भी करना है एक बहुत लिमिटेड टाइम में करना है। ऐसे केस में जहाँ लिमिटेशन है टाइम के लिए, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट भलाई कितना भी पुअर कंडीशन में हो, आप उसके इन्वेस्टिगेशन भलाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा लीजिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर क्या है, क्या हो रहा है, पैथोलॉजी क्या है। अगर उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, ये आपको विदाउट इन्वेस्टिगेशन कैसे समझ में आएगा? ओनली टेथोस्कोप से समझ में आता है। हम तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं जो ओनली कार्डियक केसेस ही देखते हैं, राइट। कितने लोग हैं जिनको ईसीजी रीडिंग आता है और वो भी परफेक्टली ओनली ईसीजी देख के वो डायग्नोज कर सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ सीसीएम या फिर एंजाइना। तो इसीलिए कल जो मैंने लास्ट में बताया था कि अपना ईगो बाजू में रख के अगर आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं, आपके कोई जो भी हायर सेंटर में है उनका ओपिनियन लेते हैं, तो इट इज़ नॉट बैड, और ये आपको कोई ईगोइस्टिकली हर्ट नहीं करने वाला है। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट देना है पेशेंट के लाइफ को। आपको एक लाइफ सेव करना है, तो वो लाइफ सेव करने के लिए आपको देखना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो वही हमें उतनी ही कैपेसिटी के साथ, उतने ही क्या बोलेंगे उसे, कैपेसिटी, एबिलिटी के साथ हमें वर्क करना पड़ेगा, इंटेंसिटी के साथ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस आएगा, सक्सेस मिलेगा। यस, क्लियर इट। और कोई? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो इन्वेस्टिगेशन करना आप जो नेसेसरी है वही कीजिए, अनवांटेड इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए। यस, तिची कंप्लीट हिस्ट्री घ्या। हिस्ट्री घेतल्यानंतर बघा तुमचं कॉन्स्टिट्यूशनल परफेक्ट आहे का, परफेक्ट मिळते आहे का, हिस्ट्री परफेक्ट मिळते आहे का। अगर तुम्हाला कुठे डाऊट असेल तर तुम्ही ओपिनियन घ्या, राईट। किंवा जसं तुम्ही बघा ॲलोपॅथिक सिस्टीम काय करते,
ते एक पेशंट ट्रीट करायचा असेल तर तिच्यात 5 डॉक्टर इन्व्हॉल्व होतात, राईट. त्यामध्ये फिजिशियन वेगळा असतो, सर्जन वेगळा असतो, एक सुपर स्पेशालिस्ट वेगळा असतो, राईट. कार्डिओलॉजिस्ट वेगळा असतो. म्हणजे एक पेशंट एक असते, परंतु ओपिनियन ते सर्वांचेच घेतात. त्यामध्ये ज्या डॉक्टरचा पेशंट आहे त्याला पैसा खर्च नाही करावा लागत. पैसा तर पेशंटच खर्च करते, परंतु कुठे रॉंग नको व्हायला किंवा रॉंग ट्रीटमेंट नको व्हायला, काही मिसप्लेस नको व्हायला, त्याकरिता ते ओपिनियन्स घेतात, त्या प्रकारे ते ट्रीट करतात. तसं होमिओपॅथीमध्ये का नाही होऊ शकत? जर एखाद्या पेशंटमध्ये तुम्हाला डायलेमा असेल, डाऊट असेल, नसेल समजत की काय होत आहे, कसं करायला पाहिजे, कोणत्या वेनी जायला पाहिजे, कसं एनालिसिस करायला पाहिजे, नसेल तर तुम्ही तुमचे जे कोणी सिनियर्स असतील, तुम्ही ज्यांना फॉलो करता, त्यांचं ओपिनियन घ्या. बेसिकली फर्स्ट काय झालं होतं, अर्टिकेरिया कब से ट्रीट कर रहे हैं, उसके बाद ये कब हुआ? तर when she came for us urticaria, that time she was मतलब she has symptoms of cough, fever or any weight loss. That may be due to angio अपना histamine rise. Yes. तर ये सपरेशन हो सकता है. सपरेशन हो सकता है. बेसिकली द अर्टिकेरिया इट इज 4th लेयर डिजीज आणि ट्युबरक्युलोसिस ऑफ बोन्स आहे ना तिला. मॉन्टाज टेस्ट के पे इतना बिलीव नहीं कर सकते हम. आपको बोन्स की कोई और टेस्ट करनी पड़ेगी. सीटी वगैरह सांगायला पाहिजे. यस, चालेल. ओके, आपण आज टिप ऑफ द डे घेऊ, राईट. हा, तो 1 मंथ की मेडिसिन दी है, तो 1 मंथ वेट करो. यस. तो जनरल पैरामीटर्स देखो, जनरल पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे तो वेट एंड वॉच, राइट. यस. गम कैंसर है कि माउथ कैंसर है? वो देखो, हर ऑर्गन का कॉन्फ्लिक्ट अलग है. गम्स का अलग है, चिक्स का अलग है, माउथ का अलग है, टंग का अलग है, टिथ का अलग है, थ्रोट का अलग है, यूवला का अलग है. हर चीज का कॉन्फ्लिक्ट अलग है. इसलिए पर्टिकुलर क्या है, स्पेसिफिक क्या है, वो देखो.
उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट. यस. टिथ, दैट मीन्स एंगर सप्रेस. एंगर सप्रेस, स्टीम, हर्ट, क्योंकि बोन का भी पार्ट होता है इसमें. डिवैल्यूएशन हुआ है कहीं, डिवैल्यूएशन की वजह से एंगर सप्रेस हुआ, दिस इज द रीजन. या फिर कुछ ऐसा है जो मतलब है, मतलब मिल नहीं रहा है. हम बोलते हैं ना, दांत है तो चेने नहीं, चेने है तो दांत नहीं, लाइक दिस. यस, मैं मेरी बेस्ट ट्रीटमेंट करूंगा. आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा तो आप अदर ओपिनियंस भी ले सकते हैं, है ना. मैं मेरे तरफ से तो बेस्ट करने की कोशिश करूंगा. जहां कई पेशेंट आपकी कॉलर पकड़ रहा है ना, आपकी गर्दन पकड़ रहा है, आपके सिर पे तलवार लटका रहा है, तो पूरा बॉल उसके ही कोर्ट में डाल देने का ना. फिनोटाइपिक. यस. जी. हम्म. यस, जो मैंने कैंसर की केस बताया था ना, अभी अभी जो इस सेशन में मैंने इलियोसिकल कैंसर की केस जो बताया, उसमें मैंने एक्चुअली जीसीएस दिया था, नॉट फिनोटाइपिक. क्योंकि सर ने एक बार कहा था कि आफ्टर सर्जरी आप उसे जीसीएस दो. यस, इसलिए मैंने उसे जीसीएस दिया और जीसीएस से ही वो निकली. पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो नील आया आफ्टर मेटास्टेसिस. यस. बिफोर सर्जरी अगर है, बिफोर सर्जरी है, मैलिग्नेंसी है, तो आपको फिनोटाइपिक देना पड़ेगा. और फिनोटाइपिक में ऐसा कंफर्म नहीं है कि आपको रिपीटेशन करना ही है. देखो, सर ने भी बहुत से केसेस में रिपीटेशन किया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर केस क्योर हुई, हर केस में वो लगाई, ऐसा नहीं है. और सर ने किस बेस पे वो रिपीटेशन किया, इसका कभी सर ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि फ्रॉम व्हाट एफोरिज्म सर ने वो लिया और रिपीटेशन किया करके. क्या एनिमन ने कौन से एफोरिज्म में बताया, ऑर्गेनन में कहाँ लिखा है कि कैंसर्स के केसेस में रिपीटेशन करना चाहिए. तो इसका कोई बेस सर ने बताया नहीं था. शायद सर और उसमें कुछ रिसर्च करने वाले थे और बाद में सब ओपन अप करने वाले थे, लेकिन शायद ये नहीं हुआ. यस. So, okay, yes, yes, Snehal, yeah. देखो, लॉस ऑफ वॉइस इट इज एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक. क्रॉनिक है तो वहाँ पे माइजमेटिक मतलब आपको देखना पड़ेगा कि क्यों हुआ है, राइट. पैथोलॉजी क्या है, बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है या फिर और कोई पैरालिसिस जिसकी वजह से हुआ. और एक्यूट में मोस्टली द लैरिंगोट्रैकियल इडिमा की वजह से होता है. तो एक्यूट ट्रीट करना इट इज वेरी इजी. आप उसमें एक्यूट चार्ट यूज करके उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन क्रॉनिक केस में आपको माइजमेटिकल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. आप हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी हिंदी हिंदी.
आवाज नहीं आ रहा। यस, आवाज आपका कट रहा है, आवाज आपका कट रहा है। नेट कनेक्शन शायद आपका बराबर नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बोलेंगे तो ठीक लगेगा। कब से है? यस, दैट इज क्रॉनिक केस, साइकोसिस है। आपको वहां पे पूरी हिस्ट्री लेके पॉजिटिव फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता है तो मैथमेटिकल रूब्रिक्स लेके आपको उसको ट्रीट करना है। यस यस, लैरिंग्स, इनगोइंग मॉर्सल, कुछ ऐसा है जो ना निकाल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना अंदर रख पा रहे हैं, कुछ तो भी है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, माधुरी श्रीवास्तव। Sciatica, it comes into 6 layer, and psoriasis, it is the 4th layer dermis, so it is bad. अगर sciatica अच्छा नहीं हो रहा है, psoriasis अच्छा हो गया, that is bad. Wait and watch. Wait and watch. Yeah. Thank you very much. Yes. So now the spoon feeding of Dr. Samuel Hahnemann from the book of chronic disease, and today's hint about log cure. The log cure. So Hahnemann actually log cure. आप सब लोग अभी म्यूट कर दीजिए खुद को। ओके, सो लॉग क्यूर, इट इज अ हेरिंग्स लॉग क्यूर, है ना। हेरिंग्स ने फाइंड आउट किया है, लेकिन डॉक्टर हैनेमन क्या लिखते हैं लॉग क्यूर के लिए? एज एक्यूट डिजीजेस टर्मिनेट इन एन इरप्शन अपॉन द स्किन। देखो, प्लीज आप म्यूट कीजिए। जो लोग कल से खुद को अनवांटेडली अनम्यूट करेंगे, मैं उनको निकाल दूंगा। आप खुद को, आपको बात करनी है तो अनम्यूट कीजिए, बात नहीं करनी, बात फिनिश हो गई तो अनम्यूट करके रखिए। ओके, सभी लोगों को डिस्टर्ब होता है, हजारों लोगों को डिस्टर्ब होता है। यस, क्योंकि ये जो वीडियोस है, जो वीडियोस बनेंगी, ये सब यूट्यूब पे सभी लोग देखने वाले हैं, इसलिए बीच बीच में जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, दैट इज नॉट अ गुड साइन। यस, सो व्हाट हैनेमन राइट्स अबाउट द लॉग क्यूर, तो उन्होंने क्या कहा है? देखो, एक्यूट डिजीज के लिए क्या कहा है? एज एक्यूट डिजीजेस टर्मिनेट इन एन इरप्शन अपॉन द स्किन which divides, dries up and then passes off. देखो किस तरह से स्किन इरप्शंस क्योर होने चाहिए। which divides, कम होते जाना चाहिए। dries up, ड्राई होने चाहिए। then passes off, निकल जानी चाहिए। so it is with many chronic diseases, same chronic disease में भी इसी तरह से होना चाहिए। All diseases diminish in intensity,
जो भी क्रॉनिक डिजीज है सबसे पहले उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इन द सेंस ऑफ आउट ऑफ कंट्रोलनेस, कंट्रोल में आना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी कंट्रोल होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ऑल डिजीजेस डिमिनिश इन इंटेंसिटी, इंप्रूव. इंटेंसिटी कम होनी, देन इंप्रूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए इन ऑल डायरेक्शंस, एंड आर क्यूर्ड बाय द इंटरनल ऑर्गेनिज्म filling itself from them little by little. देखो कितना अच्छा लिखा है कि इंटरनल ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, वाइटल फोर्स इंप्रूव होनी चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, फिलिंग इटसेल्फ फ्रॉम लिटिल बाय लिटिल. दो इट इज स्मॉल 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 इंप्रूवमेंट हो रही है, गुड. अंदर से ही उसे थोड़ा 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 अच्छा लगते जाएगा. द इंटरनल डिजीज अप्रोचेस मोर एंड मोर टू द एक्सटर्नल टिश्यूज. द इंटरनल डिजीज अप्रोचेस मोर एंड मोर टू द एक्सटर्नल टिश्यूज. डिजीज तो इंटरनल है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ऑलवेज ऑन द बॉडी सरफेस पे दिखते हैं. तो इंटरनली उसे अच्छा फील होते 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 बाहर वो इंटरनल मतलब इनसाइड टू आउट होना ही चाहिए, until it finally arrives on the skin. तो वो अंदर से ही बाहर आएगा on the skin. Every homeopathic physician must have observed that the improvement in pain takes place. देखो, improvement in pain takes place from above downward, and in disease from within outward. This is the reason why chronic disease, if they are thoroughly cured, always terminate in some cutaneous eruptions. That is the more important to lesson. Inside out, above downward, within outward. So this is the Hering's law, जो हैनीमन ने the chronic disease book में लिख के रखा है. So this is the today's hint. हम ढूंढते हैं कि कहाँ लिखा है, कहाँ मिला, कहाँ बताया है, तो this is the proof. Yes. So thank you very much. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना टाइम दिया, मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, करता हूँ. और इस होम्योपैथी का, डॉक्टर हैनीमन का, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर का भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ. थैंक यू वेरी मच. यस यस, थैंक यू. यस, और किसी को कुछ पूछना है? यस. यस राजू. यस. पॉझिटिव्ह फॅक्टर फाइंड आउट करायचे, त्याच्यानंतर कॉन्फ्लिक्ट काय ते बघायचं, नंतर जे सिम्पटम्स प्रेझेंट असतील आफ्टर म्युटेशन ते पिकअप करायचे. So okay, so today we will stop here and कल हम देखेंगे genetic prescription. Okay, so thank you very much and bye bye to all of you. Love you to all. Thank you, thank you, thank you.